तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल गुरुजी में। और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर फजलुर रहमान लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे जो हमारे इंजीनियर्स हैं जिनकी सर्वेइंग क्लास चल रही है, उन्होंने 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुकी है और उसी का जो हम डेली प्रेजेंटेशन लेते हैं हमारे क्लासेस में, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाए, तो इसलिए हम उनका डेली प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो वही प्रेजेंटेशन चल रहा है आज हमारी क्लास में। तो चलिए हम देखते हैं कि वो किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। चलिए आइए। Very good morning to all of you. I am Kafilur Rahman. I am from Bihar and I have completed my graduation from Radharaman Engineering College, Bhopal. And today I am going to explain to you all that what is surveying, what type of surveying, and how to find the reduced level. And before that, I would like to tell you that what is RL, what is absolute level, and what is mean sea level. I will explain all these things one by one. So firstly, I would like to tell you that what is surveying. Surveying is an art to determine the relative position on the surface of the earth. This is surveying. There is 2 types of survey. One plane survey and second geodetic. And for determining the reduced level, we use different type of method. So I will explain to you all later. But firstly, I would like to tell you that what is absolute level and what is mean sea level. So basically, the mean sea level is that level we measure from the center of earth to the center position of the wave of the sea. When the wave of the sea rising and falling. So when we find the position where the midpoint of the wave, that is called the mean sea level. And if we measure from the distance from the center of the earth to the center of the wave, that is called the mean sea level. And so after that, I would like to tell you that what is RL. So if we take the first reading from the mean sea level to the top of the surface, the first reading, that is called the RL, that means reduced level. So also I have written something for some labeling, types of labeling, that fly labeling, differential labeling, and also to determine this all labeling and to find the reduced level, we use some methods. HI methods, that is called height of instrument methods, and also we use the rise and fall methods. So I will explain to you all that what is height of instrument method. But before that, I would like to tell that what is differential labeling and what is fly labeling. So fly labeling is the labeling in which we get only 2 sides, back side and foresight. So what is back side and what is foresight? So back side is the side we take the first reading from our machine, from our instrument, that is called the back side. And if we take the last reading from the same position of the machine, that is called the foresight. And if we talk about the differential labeling, so differential labeling is also a labeling in which we find more than 2 points, back side, foresight, and also we find intermediate side. So fly labeling थी, yeah, because we find 2 points, back side and foresight. No sir, fly labeling, because in differential labeling we find back, fore and intermediate. And I would like to tell you that how to find the reduced level with the help of HI method, height of instrument method. So basically we have to remember 2 formulas and we have to put the values in formula and then we get the result. So first formula to find the height of instrument is that we have already known the benchmark, and also we assume the benchmark where that the RL is known. So we add RL to the back side, then we get the height of instrument. And if you have to find the reduced level, then what we do, that we reduce foresight in height from the height of instrument
then we get a reduced level, and then again and again we repeat the same procedure, then we find height of instrument, and then we find the reduced level, and through the repetition of all the process we can get and we transfer the reduced level again and again and again. So I would like to wrap up my speech, and thank you very much listening to me very carefully. A very good morning to you all. I am Pritam Priyadarsan. I am from Odisha, Bhubaneswar. I did my graduation from IGIT. अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या हमने पढ़ा हुआ था ये 2 दिन सर्वे की क्लास में. तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं ना, हमें रिड्यूस लेवल सर्वे में बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट सर्वे के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड टू फाइंड ए पॉइंट विच इज़ फाउंड फ्रॉम 2 रेफरेंस पॉइंट्स. तो दो पॉइंट्स की मदद से हम एक पॉइंट को लोकेट करते हैं. और सर्वे बेसिकली क्यों किया जाता है, जैसे रोड या फिर जब अपन लेवल ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली वही वर्क्स में हमारा सर्वे किया जाता है. तो अभी हमारे पास क्या होता है कि मीन सी लेवल एक होता है जो कि हमारे जो वेव्स के वेरिएशन होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड के मीन लेके एक पोजीशन में मीन सी लेवल लिया होता है, जो कि मेज़र किया जाता है हमारे सेंटर ऑफ द अर्थ से, जो कि ये डायग्राम में गिवन है. तो इसको अपन मीन सी लेवल कहा जाता है. देन इसके बाद एब्सोल्यूट लेवल होता है. एब्सोल्यूट लेवल मतलब क्या होता है, जो भी पॉइंट सेंटर ऑफ द अर्थ से हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ तक लिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लेवल बोलते हैं. और रिड्यूस लेवल क्या होता है, मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में जो हाइट होती है हमारी एब्सोल्यूट लेवल की, जैसे कि एब्सोल्यूट लेवल माइनस मीन सी लेवल, जो भी अपना वैल्यू है वही रिड्यूस लेवल होता है बेसिकली. तो सर्वे में बेसिकली हम ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हुए थे जब हम कल परफॉर्म कर रहे थे. और इसमें हमारे की वर्ड्स थे फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड. फिर सर्वे 2 टाइप्स के होते हैं, एक में जिसमें कि कर्वेचर कंसिडर किया नहीं जाता और दूसरे में कर्वेचर कंसिडर किया जाता है. कर्वेचर जिसमें कंसिडर किया जाता है उसको अपन जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं, और जिसमें कर्वेचर कंसिडर नहीं किया जाता उसे हम प्लेन सर्वेइंग कहते हैं. फिर हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, जो कि एक जो हमें हमने पढ़ा हुआ है पिछले 2 क्लासेस में. एक होता है हमारा बेसिकली फ्लाई लेवलिंग मेथड और एक डिफरेंशियल लेवलिंग मेथड. तो फ्लाई लेवलिंग मेथड क्या होता है, जब हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं और जिसमें कि हमारा क्लोज लूप नहीं होता. कभी कभी हमारे पास ऐसे होता है कि हम जैसे ही कल परफॉर्म किए हुए थे और हमारे पास एक क्लोज लूप बना, तो उसको अपन क्लोज लूप मेथड भी बोल सकते हैं और फ्लाई लेवलिंग मेथड भी बोल सकते हैं. तो फ्लाई लेवलिंग मेथड में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता है और इसमें हमें इंटरमीडिएट साइड नहीं मिलती, बैक साइड एंड फोर साइड मिलती हैं सर. और फिर सेकेंड पॉइंट यह है कि जो हमारी डिफरेंशियल लेवलिंग होती है तो उसमें बेसिकली हमारा बैक साइड, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड. और बैक साइड, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड जो होता है, बैक साइड मतलब क्या होता है कि हमारा कि जैसे जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है ऑटो लेवल को सेट करने के बाद, तो वही हमारी बैक साइड हो जाती है. फिर जब स्टाफ को मतलब कि जो स्टेशन रहता है उसको अगर हम कोई बीच में शिफ्ट करके फोर साइड के पहले कहीं अगर शिफ्ट करके उसको रीडिंग लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड. और फिर फोर साइड हमारी लास्ट रीडिंग होती है. और जब हम क्या करते हैं ना, हम जैसे ही कल लेवलिंग परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें क्या किया ना, स्टाफ को पहले एक बेंचमार्क गिवन था हमें, उससे हम पहले रीडिंग ले लिए जो कि बैक साइड था. फिर स्टाफ को शिफ्ट किए हम फोर साइड में. वो फोर साइड जब स्टाफ है वहीं का रिड्यूस लेवल फाइंड करके हम क्या लेते हैं कि उसका रिड्यूस लेवल फाइंड करके उसी फोर साइड को अपन इंस्ट्रूमेंट जब शिफ्ट करते हैं तो उसी का बैक साइड बन जाता है. फिर ऐसे परफॉर्म करके हम लास्ट को चेक में आ जाते हैं. तो चेक में क्या होता है ना, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस, हमें ये इंश्योर करना रहता है कि फाइनल हमारा यही होना चाहिए कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू समेशन द लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ मोहम्मद राशिद खान, आई एम फ्रॉम इंदौर. आज हम बात करेंगे सर्वे के बारे में जो अभी हम कल क्लास में परफॉर्म किए. सर्वे क्या होता है, सर्वे किसी भी एरिया पे जब हम वर्किंग करते हैं तो उससे पहले उसकी स्टडी करते हैं कि हमारा ड्रेनेज कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसी रहेगी, उसके बारे में पूरी डिटेल हम पहले निकालते हैं. अब सर्वे जो होता है वो हम इसलिए करते हैं, जो हमारा जो लेवल ज़मीन होती है वो स्मूथ या एक जैसी तो होती नहीं है, कहीं से ऊपर नीचे होती है. तो उसका लेवलिंग निकालने के लिए हम उसका सर्वे करते हैं, क्योंकि लेवलिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ आप लोगों को बैक फिलिंग करना है, कहाँ उसको लेवल में लाना है, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है. तो सर्वे जैसे सर ने बताया
कि जो मीनसी लेवल है उसके डिफरेंस से हम उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब जैसे मुंबई का जो सी है उसका जो मीनसी लेवल है उसके अकॉर्डिंग फिर हमने क्या किया, उसको अलग अलग जगह ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ अर्थ है और ये मीनसी लेवल क्या होता है, जो हमारी समुद्र की जो लहरें होती हैं, जो उसका बीच का जो पोर्शन होता है वेव का, उसको हम बोलते हैं मीनसी लेवल। तो यहाँ से लेके जो वेव्स की जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं मीनसी लेवल। और ये होता है हमारा एब्सोल्यूट लेवल, ये होता है सरफेस ऑफ द अर्थ टू सेंटर, ये हम एब्सोल्यूट लेवल बोलते हैं। और सर्वे होता है, फ्लाई सर्वे होता है, और एक होता है डिफरेंसिव। हाँ, तो फ्लाई सर्वे में हम क्या लेते हैं, एक हम लेते हैं उसमें बैक साइड और फोर साइड, है ना। हम इंस्ट्रूमेंट अपना सेट करेंगे और फिर वहाँ से हम जो रीडिंग लेंगे बैक साइड वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, और फिर हम जो लेंगे फोर साइड वो हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। तो ये जो प्रोसेस रहती है उसको हम कहते हैं फ्लाई सर्वे। और दूसरा होता है डिफरेंशियल सर्वे, उसमें हम इंटरमीडिएट सर्वे मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट भी लेते हैं। मतलब हमने एक बार सेट कर लिया, उसके बाद फिर हमने एक बैक साइड ले लिया, उसके बाद फिर हमने 2, 4, 5 जितने भी इंटरमीडिएट साइड ले लिए, उसके बाद फिर हमने फोर साइड ले लिया, तो वो हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल सर्वे में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज़ वसीम। मैं आज आपको सर्वेइंग के बारे में थोड़ा ये बताऊंगा कि मैंने 2 क्लास में क्या पढ़ा, सर्वेइंग होता क्या है, कैसे इसका यूज़ करा जाता है फील्ड पे। तो सर्वे करने का सबसे पहला मकसद ये होता है कि अपन को जो ज़मीन दी जाती है वो उसमें अंडुलेशन बहुत होते हैं, तो उस अंडुलेशन को भरने के लिए हम सर्वेइंग करते हैं। लेवल ट्रांसफ़र जो करते हैं वो सर्वेइंग की मदद से कर सकते हैं। और लेवल निकालने के लिए सबसे पहले अपन को एक बेंचमार्क लेना पड़ता है जिसका आरएल अपन को पता हो। जैसे आरएल अपन को 100 ले लिया है, तो इसके बाद अपन जो इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे उसके बाद जो फर्स्ट रीडिंग आएगी वो बैक साइड आएगी। उसके बाद जो बेंचमार्क अपना सेट हो गया, इंस्ट्रूमेंट सेट होगा, उसके बाद जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग आएगी वो इंटरमीडिएट होगी, और उसके बाद जो लास्ट रीडिंग आएगी वो फोर्थ साइड होगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रमोद कुमार। आज हम लोग जो 2 दिन सर्वेइंग में पढ़े हैं, आज उसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे। सर्वेइंग में 2 दिन सर्वेइंग इम्पोर्टेंस क्यों है। सर्वेइंग कहीं भी अपन जाएंगे तो वहाँ पे अंडुलेशन मिलता है, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी हो या कहीं पे भी जाएंगे। जैसे बिल्डिंग एलिमेंट्स हो गया, तो बिल्डिंग का हर एलिमेंट्स जो है उसकी कुछ ना कुछ हाइट्स रहती है। वो हाइट्स कैसे देते हैं, एज ए लेवलिंग के थ्रू ही देते हैं। जो फ्लोर की हाइट क्या रहेगी, प्लिंथ लेवल। यदि अपन कहीं नया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना है वहाँ पे यदि पहुँच गए तो वहाँ पे साइट इंजीनियर बोलेंगे जो भैया एक आपको बेंचमार्क दे दिया गया है, एक आरएल दे दिया गया है, और वहाँ से आपकी प्लिंथ जो कंस्ट्रक्शन करोगे उसका प्लिंथ लेवल जो होगा 900 mm हाइट पे होगा या 600 mm हाइट पे होगा। तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे ऑटो लेवल सर 2 दिन पढ़ाए सर ने, जो ऑटो लेवल से अपन आरएल कैसे निकालते हैं, उसमें फोर्थ साइड बताया गया, इंटरमीडिएट साइड बताया गया, बेंच मार्क, बैक साइड, ये सब चीज़ें बताई गई। तो अपन किस तरीके से एक एक प्रोसीजर, एक एक स्टेप करते हुए पूरा आरएल वहाँ का फाइंड करेंगे, ये हमने 2 दिन में सीखा। और सर्वेइंग को देखा, जो सर्वेइंग 2 टाइप से होते हैं, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, प्लेन में जब अपना अर्थ सरफेस पूरी स्मूथ हो, उसमें कर्वेचर टाइप्स का ना हो, तो वो प्लेन सर्वेइंग के अंदर आते हैं। कर्वेचर में जहाँ पे कर्व टाइप का बन गया वो जियोडेटिक सर्वे में आता है। लेवलिंग जो है डिफरेंशियल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होती है, उसमें फोर साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड, ये 3 चीज़ अपने को फाइंड करना है। बैक साइड दिया हो रहता है, वहाँ से हाइट ऑफ ऑटो लेवल के लेवल से थ्रू अपन क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ फाइंड करते हैं, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड। वही फ्लाई लेवलिंग में क्या होती है, अपना ऑटो लेवल जो है ना बार बार रिपीट होती है, बार बार जो है अपन उठा करके एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कहीं यदि अपना लेवलिंग देना है तो बीच में यदि ट्रक लगी हुई है, सर ने बताया ट्रक लगी हुई है, ट्रक का ड्राइवर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे उसको बुलाने तो जाएंगे नहीं, अपन क्या करेंगे, मशीन उठा करके दूसरे जगह शिफ्ट करके अपना लेबलिंग ले लेंगे। इस तरीके से जो हम लेबलिंग लेंगे, फ्लाई लेबलिंग और डिफरेंशियल लेबलिंग लेते हैं। Hello friends and my respected sir, I am Raza Ahmed, I am from Bihar. My completed BTech SRK University in Bhopal,
आज ये सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सेंटर से इस मीन सी लेवल तक समुंदर के जैसे ये मेरा यहाँ से लहरें उठती है ऐसे ऐसे, फिर ये नीचे जाती है, फिर ऐसे ऐसे फिर नीचे जाती है। इसकी बीच ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको हम मीन सी लेवल बोलते हैं, सही है। फिर यहाँ से तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे क्लासरूम में प्रेजेंटेशन शुरू है हमारे इंजीनियर्स का, तो अगर इसी तरह की ट्रेनिंग आप भी चाहते हैं, इसी तरह सीखना चाहते हैं आप लोग भी सर्वे, और सर्वे ही नहीं सारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट जो साइट के ऊपर आपके काम आने वाले हैं और जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं एज ए साइट इंजीनियर और जितने भी सिविल इंजीनियर होते हैं उन सभी के लिए, जैसे कि एस्टिमेशन होता है, उसके बाद होता है हमारा बीबीएस मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल, उसके बाद होता है सर्वे, और सर्वे की क्लास लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर भोपाल में। और जैसे कि आप लोगों ने भी देखा कि इन लोगों का सर्वे के 2 दिन हो गए हैं और इन्हें अच्छे से लेवल ट्रांसफ़र करना आ गया है पूरी तरह से, और सारी चीज़ें पूरा क्लिस्टर क्लियर है इन लोगों के दिमाग में कि लेवल कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, लेवल ट्रांसफ़र करना क्यों पड़ता है। बात जो ये लोग सीखने वाले हैं वो है प्रोफाइल लेवलिंग, कंटूर मैपिंग, और ये सब वो एक्सेल में भी डालकर सीखेंगे। इसके बाद जो हम सर्वे में सीखने वाले हैं उसमें ही हम कन्वर्ट सीखने वाले, रोड को भी हम कंप्लीटली इसमें सीखने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों का शुरू हो जाएगा अगले 15 डेज़ के लिए क्वांटिटी सर्वे, और क्वांटिटी सर्वे के बाद आप लोग पढ़ने वाले हैं बिलिंग, और बिलिंग के बाद केस स्टडी, और केस स्टडी में आप लोग रिज्यूम बनाना, खुद का रिज्यूम बनाना। देखिए रिज्यूम बनाना मतलब ये नहीं होता कि आप लोग अपना रिज्यूम किसी और के पास से जाकर कॉपी कर ले, क्योंकि रिज्यूम हमसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता। तो आप सभी को अगर ये सब सीखना है और पूरी साइट की ट्रेनिंग चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की साइट की ट्रेनिंग चाहिए, तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए हमारे नंबर पर जो है 9111001234, और आइए और सीखिए हमसे ये सारी चीज़ें, पूरा प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।